इंडिया अबाउट टू चेंज द क्रिप्टो गेम। रशिया एक नया पेमेंट सिस्टम लॉन्च कर रहा है जिस पर क्रिप्टो पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। वेब3 स्टार्टअप जो ओवरसीज सेटल हो गए हैं वो लौट कर वापस आएंगे। इलॉन मस्क माइक्रोसॉफ्ट को लॉ सूट के नाम से डरा रहा है। नाइकी अपना पहला डिजिटल स्नीकर कलेक्शन सूश पर लॉन्च कर रहा है। पबजी क्रिएटर इस साल NFT मेटावर्स गेम लॉन्च करने वाले हैं। EU ने क्रिप्टो रेगुलेशंस को अप्रूव करा। नमस्कार, मैं पत्रकार संदीप चौहान लेकर आया हूं इस हफ्ते की कुछ गर्मा गर्म ताजा तरीन खबरें जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। तो अगर सो रहे हैं तो जाग जाएं और अगर जागे हुए हैं तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि है क्रिप्टो की बात कॉइनेक्स के साथ। अब वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। कॉइनेक्स लेकर आता है आपके लिए क्रिप्टो इंडस्ट्री और रेगुलेशन से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स। कॉइनेक्स के साथ अब आप अपने क्रिप्टो टैक्स फाइलिंग बड़े आसानी से और डिस्काउंटेड प्राइस में कर सकते हैं। इस वीडियो के व्यूअर्स के लिए है एक स्पेशल 50% का डिस्काउंट ऑन योर फर्स्ट क्रिप्टो टैक्स रिपोर्ट्स। डिस्काउंट कोड और कॉइनेक्स की लिंक दोनों ही आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। न्यूज नंबर 1, इंडिया अबाउट टू चेंज द क्रिप्टो गेम। इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमण क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन पर ग्लोबल कंसेंसस की मांग करती आ रही हैं। अब ये तो हम सबको पता है। निर्मला जी मानती हैं कि प्राइवेट डिजिटल एसेट्स को इफेक्टिवली गवर्न करने के लिए यूनिवर्सल एग्रीमेंट की जरूरत है। साथ में उन्होंने कहा कि कोई एक सिंगल कंट्री इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए सारी कंट्रीज को एक साथ मिलकर काम करना होगा और क्रिप्टो करेंसी के लिए एप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क लाना होगा। बाकी और उन्होंने क्या कहा आप खुद इस वीडियो में देख सकते हैं। Comments. There was a lot of interest on digital currency, on e-rupee, as well as how we plan to regulate crypto. You mentioned in your recent travels abroad that a global consensus on crypto for regulation is necessary before India makes any move on that. Could you talk to us a little bit about that? That's true. The G20, of which India is currently holding the presidency, it was India's proposal and it has been taken on board. I'm glad to say the G20 has kept it in its agenda for this year. The IMF has given a paper on cryptocurrency and its the way it can affect macroeconomic stability. The FSB is also, FSB is the Financial Stability Board, which is a part of the G20. It was set up by the G20. Even they have agreed to give a report that will also focus on the financial stability. And their report and the IMF's report are going to be discussed in July when again the first finance ministers and central bank governors will meet under the G20. And post that in September there will be a summit of prime ministers and presidents of the G20 nations that will be held in India. The underlying principle is because digital currencies are so obviously, naturally, and of course, they are completely digitalized and technology driven. The technology which is very distributed, and sometimes identity is very difficult to be established, but which has potential, will therefore have to be acted upon only with all countries coming on board. No one country individually in a matter of technology driven a crypto asset can effectively control it, because technology doesn't have any borders. It can just pass through. So the very character of it being technology driven requires all countries to be on board. So if you were to regulate here and not regulate elsewhere, it will only flow like that and keep hitting back at you. It will not be effective, and therefore the understanding today, and I'm glad to say, understanding the G20 along with OECD and other organizations, IMF, World Bank and so on, is that yes, a global understanding is required, a global template may have to be created, all of us will have to work together on it, otherwise regulating crypto may not be effective. But that doesn't mean we are controlling that technology of distributed ledger technology. It has its goodness, it has its potential, it has its own strengths.
we keep that in mind. न्यूज नंबर 2, रशिया एक नया पेमेंट सिस्टम लॉन्च कर रहा है जिस पर क्रिप्टो पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। रशिया एक नया पेमेंट सिस्टम लॉन्च कर रहा है जिस पे क्रिप्टो पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी और क्रिप्टो और डिजिटल करेंसीज को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए यूज भी करा जा सकता है। रशियन फाइनेंस मिनिस्टर एंटोन सिलुआनोव ने कहा कि अगर दो कंट्रीज अग्रीमेंट करके पेमेंट सेटल करना चाहती हैं तो किसी तीसरी कंट्री के पास उस पेमेंट को रोकने का राइट नहीं होना चाहिए। एंटोन ने कहा कि फ्यूचर इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो को यूज करने में अब ये मूव रशिया का अपने ऊपर से पूरे तरीके से डॉलर पर रिलायंस को हटाने का है, जिसके लिए बैंक ऑफ रशिया काफी वक्त से डिजिटल रूबल बनाने में भी लगी हुई है। डिजिटल रूबल का लॉन्च रशिया का वेस्टर्न और डॉलर सेंट्रल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपने रिलायंस को कम करेगा। एंटोन ने यह भी रिवील करा कि रशिया और चाइना के बीच एक सेटलमेंट में रशियन रूबल और चाइनीज युआन ऑलरेडी यूएस डॉलर को रिप्लेस कर रहा है। रशिया और चाइना में अब 70% से ज्यादा ट्रेड उन्हीं की नेशनल करेंसीज में होती है। अब अगर आपको जानना है कि आखिर क्यों डॉलर की इन्फ्लुएंस कम होती जा रही है और कौन सी करेंसी है जो इसे ओवरटेक करेगी, तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। न्यूज नंबर 3, वेब3 स्टार्टअप जो ओवरसीज सेटल हो गए हैं वो लौट कर वापस आएंगे। इंडिया के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी राजीव चंद्रशेखर का कहना है कि सारे इंडियन वेब3 स्टार्टअप्स जो दुबई को टैक्स हेवन मानकर वहां मूव हो गए हैं वो आगे चलकर वापस इंडिया लौट कर आएंगे, क्योंकि इंडिया अपने डिजिटल इंडिया पर और फोकस करते हुए ऐसी पॉलिसीज लेकर आएगा जो इन स्टार्टअप्स को वापस अपने देश लौटने के लिए अट्रैक्ट करेगी। न्यूज नंबर 4, इलॉन मस्क माइक्रोसॉफ्ट को लॉ सूट के नाम से डरा रहा है। ट्विटर के चीफ इलॉन मस्क ने माइक्रोसॉफ्ट पर यह एलिगेशन लगाया है कि उन्होंने अपने एआई को ट्रेन करने के लिए ट्विटर की इंफॉर्मेशन का यूज करा है और उस डेटा को आगे दूसरों को बेचा भी है। ट्विटर के बॉस इलॉन मस्क का यह भी कहना है कि माइक्रोसॉफ्ट अपने एआई को इलीगली ट्रेन कर रहा था। मस्क ने यह भी कहा कि वो डेटा को बेचकर और ट्विटर पे से अपने एडवर्टीजमेंट को हटाकर ट्विटर को डीमोनेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज नंबर 5, नाइकी अपना पहला डिजिटल स्नीकर कलेक्शन सूश पर लॉन्च कर रहा है। ग्लोबल स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड नाइकी जल्दी ही अपना पहला NFT स्नीकर कलेक्शन लॉन्च करने वाला है और वो भी इसके रिसेंटली लॉन्च प्लेटफॉर्म सूश पर। इस वर्चुअल स्नीकर का नाम Air Force 1 है जो नाइकी के आइकॉनिक एयर फोर्स 1 की डिजाइन है। नाइकी पहले तो कुछ सिलेक्टेड यूजर्स को पोस्टर्स एयर ड्रॉप करेगी, जिसके चलते इन सूश यूजर्स को सेल का May 8 का अर्ली एक्सेस मिल जाएगा। इसके बाद ये सेल May 10 को पूरी कम्युनिटी के लिए लाइव कर दी जाएगी। इन डिजिटल स्नीकर्स की प्राइस $19.82 रखी गई है। न्यूज नंबर 6, PUBG क्रिएटर इस साल NFT मेटावर्स गेम लॉन्च करने वाले हैं। PUBG गेम के क्रिएटर क्राफ्टन इस साल अपना मेटावर्स बेस्ड गेम लॉन्च करेगा और इस वेब3 मेटावर्स गेम प्लेटफॉर्म का नाम मिगलू हो सकता है। अब इसको डेवलप करने के लिए क्राफ्टन और साउथ कोरियन ऑगमेंटेड रियलिटी फर्म नेवरजी ने साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई है जो कि नॉर्थ अमेरिका में बेस्ड है और मिगलू के डेवलपमेंट के लिए इन्होंने $36.8 मिलियन भी पोर करे। अब इस वेंचर का 85% स्टेक क्राफ्टन के पास है और बचा हुआ 15% नेवरजी के पास। न्यूज नंबर 7, EU ने क्रिप्टो रेगुलेशंस को अप्रूव करा। एक हिस्टोरिक मूव में EU के लॉ मेकर्स ने क्रिप्टो लाइसेंसिंग रेजिम, MyCA और दूसरे ट्रांसफर ऑफ फंड्स रेगुलेशन रिलेटेड लॉज के फेवर में वोट करा। ये डेवलपमेंट EU को कॉम्प्रिहेंसिव क्रिप्टो लेजिस्लेशन इनैक्ट करने वाली वर्ल्ड की फर्स्ट मेजर जुरिसडिक्शन बना देती है। ये रेगुलेशन 2024 से इफेक्ट में आएंगे। इसे सबसे पहले यूरोपियन कमीशन ने 2020 में प्रपोज करा था। अब ये थी इस हफ्ते की कुछ टॉप क्रिप्टो न्यूज। अब मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।